एवरीवन, दिस इज़ परवीन सहान फ्रॉम हेल्थ एंड सिरसा। और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के बारे में आजकल बहुत र्यूमर्स भी फैल रहे हैं कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो आज मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट पायल, जिसके 7.5 बैंड थे। शी गॉट ट्रेनिंग ऑफ आइट्स हेयर। और उसके बाद इसने जो अपना ट्रस्ट है वो कंटिन्यू रखा, क्योंकि इसकी कज़न जो थी पायल, वो अब कनाडा है। शी वॉज ऑल्सो हैविंग 7 बैंड और शी गॉट हर वीज़ा फ्रॉम हेल्थ से। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम आज बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में गाइस। तो दैट हैज़ बीन ग्रांटेड और उसकी पूरी स्टोरी मतलब आपको सुना रहे हैं कितने टाइम में क्या चीज़ें हुई। पहले तो आप ये देख लो स्क्रीन के ऊपर। सबसे प्यारी चीज़ जिसके लिए हम तरस जाते हैं, दैट इज़ वीज़ा ग्रांटेड। ग्रांटेड। और जैसे ये होता है तो चेहरे पे स्माइल इतनी ज़्यादा आ जाती है, यू कैन नॉट कंट्रोल। तो पायल, आप बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी, किस तरह से? Yeah, actually my journey started after I completed my IELTS. So the main challenge was which university I should opt for and which course I should opt for. So initially I decided to go for Curtin University in Perth because it was a regional area, and I was attracted with the fact that I'll get my PR easily. But when I reflected for some days and even months, I would say, I changed my mind and I shifted towards Melbourne. And Melbourne attracted me, because it's very vibrant. And yeah, I'm very happy I finally got my visa. So first of all, I just changed my university from Curtin to Deakin, which is in Melbourne, Geelong. And actually I applied on 7th Feb 2022 and I got the offer letter the next day. Okay, so From Deakin University? Yeah, from Deakin University within 1 day. So you were very much excited? Yeah, I was excited, like finally my process has started, and like it would be smooth, only 1 or 2 months will be there in my journey. But things were not as I had expected, and I got a call for interview exactly after a month on 12th March. So that month was really hard. Like I was worried if anything is even happening. So after that, I was again worried because my GT was cleared after more than a month later on 24th April. So that was also a hard time. And yeah, after that. And I would really love to discuss one more thing here. That is, she was over worried, over excited she was. Or many of the times I have seen her crying also. कि सर पता नहीं क्या होगा. और as you seen guys, you must have seen like in Australia, lots of persons are there, they are pretty much worried about lots of rumors. क्योंकि जब एक rumor आता है कि हरियाणा वालों को नहीं लेंगे और आपका थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो बेसिकली गाइस बच्चे के पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है. उस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के चक्कर के अंदर बच्चा मतलब अच्छी चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करता. उसको थोड़ी सी भी कुछ गलत इनपुट मिल जाती है कहीं से, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है. और मैं हर बार एक चीज़ बोला करता था कि देयर इज़ नो नीड टू वरी, क्योंकि यू आर हैविंग 7.5 बैंड. लेकिन एक चीज़ ये कि शी वाज हैविंग लास्ट सर्टिफिकेट आई थिंक इन 2020. तो 2020 पास आउट है, सबसे बड़ी चीज़ ये है. तो जिस तरह से कई लोग सिर्फ डराने के लिए वीडियो बना देते थे, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कोरोना के टाइम में जो 2 साल का जो गैप आया बच्चे का, जिसने बाहर जाने का प्लान कर लिया, और फेक सर्टिफिकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है गाइस. कोई भी फेक सर्टिफिकेट नहीं लगा इस बच्चे का. 2020 के बाद कुछ भी शो नहीं किया गया गाइस, क्योंकि कुछ किया ही नहीं. आगे फर्दर वो एजुकेशन ही बाहर लेना चाहती थी, तो शी वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग इन हर विश लिस्ट की फ्रॉम इंडिया शी शुड गो फॉर दैट. तो आगे मूव करते हैं. डेकिन यूनिवर्सिटी, Geelong. Yeah. So we were on the GT interview. So I got my clearance on 24th April. So that was a long journey from 8th February to 24th April. And yeah, after that we just paid the fee, and I was again excited that my COE will be there within a week and my visa will be there within 15 to 20 days. But again, it took a complete month to get my COE, like which is a basic certificate, a proof of the payment of fee. So yeah,
After that, there was a time when the work was, at its height, and I have seen everyone working to full spirit, with full वेरी गुड spirit. एंड अगेन आई वुड रियली लव टू शो यू समथिंग. ये चीज़ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि डेट ऑफ ग्रांट जो है वो 18 जून 2022 है और 30 अगस्त से मतलब मस्ट नॉट अराइव आफ्टर, हाँ 30th अगस्त 2025. ओके, 3 years. मतलब 3 years आर देयर. ओके, सो दैट इज जस्ट देयर. और अभी एक चीज़ और जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि एक एस जो होती है ना, एस पे बहुत डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जो ऑस्ट्रेलिया है. और जो स्टूडेंट्स सिर्फ कंसल्टेंट कहता है कि मैं ही बना दूंगा एस तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता क्योंकि कनाडा जो है एस में ज़्यादा वैरायटी नहीं मांगता, ज़्यादा लंबी उसको लेंथ नहीं मांगता. वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, मतलब इट इज़ सॉर्ट ऑफ योर ओन इंटरव्यू गाइस. तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया था कि ऐसा है. अभी जो कैमरा पे है दैट इज़ ऑल्सो हैविंग 7.5 बैंड, और ये भी रोया है गाइस एस बनाने के लिए कि सर 10,000 रुपीज़ अगर चार्ज कर लो मेरे से, कोई मर्जी एस बना के दे देगा सर, लेकिन आई हैव नॉट ट्रस्टेड अपॉन दिस पीपल. इवन इसने भी बोला कि सर आप बना दो, तो वाई शुड आई. ओके, अब बेसिकली गाइस आई जस्ट मेंशन कि आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू. मैं इन लोगों के साथ लगा गाइस पर्सनली, और हम लोगों ने एसओपी बनाई. और एक दिन पहले शी वाज क्राइंग. एक बार थोड़ा कैमरा इसकी तरफ करो. और उसी दिन शाम को बन भी गई. ओके, तो मतलब मेरा दिल थोड़ा सा पसीज गया गाइस कि चलो मैं हेल्प करता हूँ. और उसके बाद हम लोग बैठे और हम लोगों ने एसओपी प्रिपेयर करी, और एक दिन के अंदर गाइस विद इन 1 डे, मतलब 7 to 8 hours वर देयर ईच एंड एवरीथिंग, हाँ ऑन द सेम डे गाइस. तो कई बार क्या होता है कि जब कहते हैं ना कंसल्टेंट कर देगा, तो आप लोग वीज़ा ले रहे हो गाइस. ओके, हमें ये लगता है कि इजी मोड पे अपन चले जाते हैं. जिस बच्चे को अपनी एसओपी के बारे में नॉलेज नहीं होती कि उसके अंदर क्या है, और बाई चांस उसका इंटरव्यू आ जाए, तो आई थिंक वो बच्चा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स दे आर जस्ट रिटन आई थिंक ऑन 8 to 10 पेजेस. 8 से 10 पेजेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आपका सर्वे आप बताते हो, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिसके अंदर जो फाइल लॉन्च होती है अपनी, कौन से डेट को, इट्स 7th जून. हाँ, तो फाइल लॉन्च होती है 7th जून को. और उसके बाद मेडिकल, There was only one slot available, which was in Ahmedabad on 13th June. After that, the dates were available on 25th July or so, means following those dates. So yeah, like I don't know what happened, but I just got one slot, and the day my medical was updated in the embassy, I got the visa granted the same day. So yeah. वेरी गुड. तो जैसे ही मेडिकल अपडेट हुआ और वीज़ा वाज ग्रांटेड ऑन द सेम डे, तो मैक्सिमम टाइम इट हैपन्स कि आप लोगों ने पूरा का पूरा मतलब कि किस किस तरह से जीटी क्लियर हुई, किस तरह से सीओई आई और कितना टाइम लगा. तो जो बच्चों को थोड़ा टाइम लग रहा है, दे शुड नॉट वरी अबाउट दैट गाइस. ओके, टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जैसे ही फाइल लॉन्च होती है, मेडिकल होता है, तो मेडिकल होने के बाद जो अपडेट होता है, मेडिकल एक मेडिकल होना अलग चीज़ है और अपडेट होता है एम्बेसी के अंदर, तो उस ड्यूरेशन में मतलब आपका जब तक अपडेट नहीं होगा वीज़ा आएगा नहीं गाइस.